بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا لیکچر بہت ہی اہم ہے۔ 12ویں جماعت کی اردو، اس کا گیسٹ پیپر پریزنٹیشن، پریپریشن پیپر، SLOs، ٹارگٹ پیپر میں کیا کیا چیزیں آ سکتی ہیں، ان تمام چیزوں کے بارے میں پڑھیں گے۔ اور ایک اور چیز بھی پڑھیں گے کہ پیپر کو جو ہے کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ اس لیے کوشش کیجیے گا کہ شروع سے آخر تک اس کو صرف سنیں کہ ہم پیپروں میں کیا غلطی کرتے ہیں، تاکہ ہمارے لیے آسانی ہو جائے، تاکہ ہم زیادہ نمبر لے سکیں۔ اگر فرسٹ ایئر میں ہم نے زیادہ نمبر اردو میں نہیں لیے تو سیکنڈ ایئر میں زیادہ نمبر لے سکتے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کیسے کٹ مارکر استعمال کیے گئے ہیں، اور بہت ہی صاف ستھرا لکھا گیا ہے۔ ایسے اگر لکھا جائے تو بہت اچھا ہے۔ سب سے پہلے ایسا ہوتا ہے کہ MCQs کا سوال ہوتا ہے، 20 نمبر MCQs کے ہیں۔ سوال نمبر 2، اشعار کی تشریح۔ اب اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کون کون سے اشعار پیپر میں آ سکتے ہیں۔ صرف وہی اشعار اگر یاد کر لی جائیں، ان میں سے 3 یا 4 ان میں سے آئیں گے انشاءاللہ۔ اب اس میں لکھنا کیا کیا ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ دیکھیں اس میں 4 چیزیں لکھی ہوئی ہیں، اگر آپ غور کریں۔ اس میں لکھا ہوا ہے، ایک تو شاعر کا حوالہ لکھنا ہے، ایک بات، مختصر تعارف لکھنا ہے، اور تشریح، حوالہ شاعر، تعارف شاعر اور تشریح۔ 3 چیزیں تو لکھنا ضروری ہیں، 3 چیزیں۔ سوال نمبر 2، کوشش کیا کریں درمیان میں لکھیں، اشعار کی تشریح۔ اب اس میں حوالہ شاعر، تعارف شاعر اور تشریح، یہ 3 چیزیں ضروری ہیں۔ لیکن اگر آپ نوٹس میں دیکھیں تو اس کو ویسے حل کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں مرکزی خیال اگر اس کا بن رہا ہے، بنتا ہی ہے، آدھی لائن کا، ایک لائن کا مرکزی خیال لکھیں، مشکل الفاظ کے جو معنی ہیں وہ لکھنے ہوتے ہیں 1-2۔ فنی خوبی اگر بن رہی ہے وہ بنانی ہوتی ہے، پھر تشریح کرنی ہوتی ہے، اور مماثل شعر۔ زیادہ نمبر لینے کے لیے یہ تمام چیزیں ضروری ہوتی ہیں، اس کو یاد کرنا تھوڑا ضروری ہوتا ہے۔ اس لیے ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ تمام غزلیات یاد کریں، کم غزلیات یاد کریں۔ آپ اس میں کون کون سی غزلیات یاد کرنی ہیں اس کو ذرا سن لیجیے۔ میر تقی میر، مرزا غالب، خواجہ میر درد، مومن خان مومن، بس۔ اگر یہ 4 غزلیات بھی آپ ان کے اشعار کی تشریح آپ یاد کر لیتے ہیں تب بھی کافی ہے۔ لیکن انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ ہم آپ کو ایک ویڈیو بنائیں گے جس میں صرف ایسے اشعار ہوں گے جو پیپر میں آئیں گے، انہی میں سے انشاءاللہ آئیں گے، کیونکہ 5 میں سے 2 کرنے ہوتے ہیں۔ اگر وہ بھی یاد کر لیں گے تو انشاءاللہ ان میں سے لازمی 100% آئیں گے انشاءاللہ۔ اب لکھنے کا طریقہ کیا ہے؟ جیسے یہ شعر ہے، اگر پورا شعر نہیں لکھ سکتے تو کوشش کریں کہ شروع کی 2-3 الفاظ، تم میرے پاس، ڈاٹ 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 لگانے کے بعد نہیں ہوتا، اس کے بعد حوالہ شاعر۔ اس میں اگر ہو سکے تو یہ جو لکھا ہوا ہے مومن خان مومن، اس کو کٹ مارکر سے لکھ دیا جائے تو اچھی بات ہے۔ پھر تھوڑا سا تعارف شاعر، مرکزی خیال، مشکل الفاظ کے معنی، فنی خوبی، اور یہ تشریح چل رہی ہے آگے، اور آخر میں مماثل شعر۔ تو یہ تمام چیزیں اگر لکھی جائیں تو ایک اچھا امپریشن پڑتا ہے، اچھے نمبر ملتے ہیں۔ سوال نمبر 3 جو ہے وہ اقتباسات کے لیے ہے۔ اقتباسات کے لیے 8 اسباق دیے گئے ہیں ماڈل پیپر میں، لیکن اگر آپ شروع کی 3 بھی یاد کر لیں تو انشاءاللہ تب بھی کافی ہیں۔ شروع کی 3 میں نے ویسے جو ہے کچھ 20 اقتباس بنائے ہیں، وہ بھی انشاءاللہ اس کے بعد ابھی ایک ویڈیو بنائیں گے، 20 اقتباس جو پیپر میں آ سکتے ہیں۔ ان 20 میں سے امید ہے کہ لازمی 3 تو اس میں سے آ سکتے ہیں، تینوں ہی، یا 2 100% انشاءاللہ اس میں سے آئیں گے۔ تو وہ اقتباس کو دیکھنا ہوتا ہے کہ اس اقتباس میں اس کا سبق کا نام کیا ہے، مصنف کا نام کیا ہے، اور پھر تعارف مصنف۔ اگر آپ نے سبق کا نام غلط بتا دیا تو مصنف کا نام بھی غلط ہو جائے گا، اور مختصر جو تعارف ہوگا وہ بھی غلط ہو جائے گا۔ اس لیے سبق کا نام پتہ ہونا ضروری ہے کہ اس سبق کا نام کیا ہے۔ تو اگر آپ صرف یہ 3 اگر یاد کر لیتے تب بھی کافی ہیں۔ یہ سبق ہیں، ان کے مصنفین کے نام صحیح یاد ہونے چاہیے، اور تعارف مصنف۔ تو یہ انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس کو کس جناب ان سب کی تعارف مصنف بھی اگلے انشاءاللہ لیکچر میں آپ کو سمجھا دیں گے تھوڑا سا۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس کو کرنا کیسے ہے، کیا کیا چیزیں اس میں کرنی ہوتی ہیں۔ یہ سوال نمبر 3 ہوتا ہے، اس میں یہ تمام چیزیں لکھیں۔
इक्तिबास शुरू थोड़ी सी 2-3 जो है ना, हवाले सबक, हवाले मुसन्निफ़, तारुफ़ मुसन्निफ़ और तशरीह, ये 4 चीज़ें लिखना ज़रूरी हैं। ज़्यादा नंबर लेने के लिए एक अच्छा इंप्रेशन पड़ते हैं अगर आप सियाक़ व सबाक़ भी लिखते हैं, तो सियाक़ व सबाक़ भी लिखें। इस तरीके से इक्तिबास की तशरीह, ये इक्तिबास आगे शुरू के और आखिरी अल्फाज बीच में डॉट डॉट, इससे पता चल जाता है कि ये आप इस इक्तिबास की तशरीह कर रहे हैं। इक्तिबास नंबर भी लाजमी लिखें, इक्तिबास नंबर 2, और वो इक्तिबास भी थोड़ा सा लिखें। फिर उसके बाद हवाले सबक लिखना होता है, हवाले मुसन्निफ़ लिखना होता है। इस तरीके से ये आपने इक्तिबास लिखा, फिर हवाले सबक लिखा आपने, पेश नज़र इक्तिबास सीरत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जामी से लिया गया है, और फिर हवाले मुसन्निफ़, इसके बाद जो है ना कौन ख़त्म आएगा, फुल स्टॉप, हवाले मुसन्निफ़ और तारुफ़ मुसन्निफ़। तारुफ़ मुसन्निफ़ में थोड़ा सा और भी है, ये तारुफ़ मुसन्निफ़, और आखिर में अगर हो सके तसानीफ़ लिखें। तारुफ़ मुसन्निफ़ इसमें ज़्यादा लिखा गया है, आप ज़्यादा याद करके जाएंगे तो पेपर में कम ही लिख पाएंगे, तो अगर 3-4 लाइनें भी लिखते हैं तब भी काफ़ी है। और ये तसनीफ़ में 3 किताबों के नाम भी लिख दें तब भी काफ़ी है। ये सियाक़ व सबाक़ है, अगर सियाक़ व सबाक़ याद कर लेते हैं तो बहुत अच्छा है। वैसे सियाक़ व सबाक़, सबक से पहले क्या बात चल रही थी, वो सियाक़ व सबाक़ होता है, सबक से पहले क्या बात चल रही थी। इसके बाद ये तशरीह इसकी, इस तरीके से लिखना होता है बहुत अच्छे अंदाज में। अगला ये है कि इसमें मरकज़ी ख्याल में बंद की तशरीह और मरकज़ी ख्याल। अब मरकज़ी ख्याल में हमने सिर्फ ये 3 नज़में याद करके जानी हैं, 3 नज़मों के मरकज़ी ख्याल, और तारुफ़ शायर भी याद करके जाना है। तारुफ़ शायर, इनके तारुफ़ शायर भी याद करके जाने हैं। अब इसको लिखने का तरीका क्या है, इसको देख लेते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर हम हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा की रुख़सती, आप लिखेंगे सवाल नंबर 4, मरकज़ी ख्याल दरमियान में, फिर उसके बाद तारुफ़ शायर लिखेंगे आप लोग। तारुफ़ शायर बहुत अच्छे अंदाज में लिखें ताकि समझ में आए क्या लिखा हुआ है। ये तारुफ़ शायर हुआ, इसको याद कर लीजिएगा, बहुत ही आसान अल्फाज में लिखा गया इसमें। और फिर उसके बाद उनकी जो है तसन्नीफ़ वगैरह जो है वो भी बहुत अच्छे अंदाज में, ये उनकी जो है तसन्नीफ़ वगैरह हैं। इसके बाद मरकज़ी ख्याल के जो है हेडिंग दरमियान में देनी होती है, और बहुत अच्छे अंदाज में इसका मरकज़ी ख्याल लिखा जाता है। और अगर हो मुनासिब ये होता है कि उसी नज़म का एक शेर लिखना होता है मरकज़ी ख्याल में, उसी नज़म में। अगर पहला शेर लिख दें तो ज़्यादा अच्छा है। ये पहला शेर है, मतलब इसके बाद अब खुलासे कौन कौन से याद करने हैं। खुलासे असल में नावल में से याद कर ली जाए काफ़ी हैं। नावल में से एक खुलासा लाजमी इंशाल्लाह पेपर में आएगा। हमने 3 में से एक करने हैं, बेहतर तो है 5 याद कर लें, लेकिन अगर शहर होने तक, ज़मीन और नए दौर की लड़की, सिर्फ ये 3 भी याद करते हैं तो आसानी ये है कि इन तीनों में से एक लाजमी आने वाला है इंशाअल्लाह। तीनों को याद करना, फिर तीनों का तारुफ़ मुसन्निफ़ भी याद करना। ज़मीन खदीजा मस्तूर के है, तारुफ़ मुसन्निफ़ इनका याद करना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ जो सवाल जवाब आते हैं वो ना ही किए जाएँ तो अच्छे हैं। 8 सवाल आते हैं, 5 करने होते हैं। ये खुलासा थोड़ा सा आसान होता है, कहानी होती है, इसको थोड़ा समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे नए दौर की लड़की, इसका हम खुलासा लिख रहे हैं तो खुलासा बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। सबसे पहले तारुफ़ मुसन्निफ़ लिखना होता है मिर्ज़ा ख़लील बेग के बारे में बहुत अच्छे अंदाज में, फिर उनकी जो है तसन्नीफ़ वगैरह लिखनी होती हैं। अगर तारुफ़ सबक लिखना चाहें लिख सकते हैं। और फिर उसके बाद किरदार, बहुत अच्छे अंदाज में उसका किरदार लिख लिया जाए। फिर खुलासा जो है बहुत अच्छे अंदाज में, खुलासा सिर्फ एक दफ़ा कहानी है, बस उसको पढ़ना होता है।
सबक को पढ़ लिया जाए, जो बातें जहन में आ गई उसको अपनी वड़ी में लिख दिया, तो ये आसान है, कोई मुश्किल नहीं होता। इसके बाद सवाल नंबर 4 जो है वो तो बन की तशरीह भी उसमें आती है, लेकिन बन की तशरीह नहीं की जाए तो अच्छा है। सवाल नंबर 4 बन की तशरीह या मरकज़ी ख्याल, तो उसमें हमने मरकज़ी ख्याल करना है, बन की तशरीह नहीं करनी। बन की तशरीह भी आसान होती है, लेकिन मरकज़ी ख्याल और ज़्यादा आसान है। सिर्फ 3 तो मरकज़ी ख्याल याद करके जाने हैं, और ऐसे ही खुलासे जो है वो 3 याद कर जाएं तब भी सही है, 5 याद कर जाएं तब भी सही है। सैर होने तक, ज़मीन और नींद और की लड़की। इसके बाद अगला सवाल जो होता है वो हिस्सा जीम, शुआरा की शायरी की खुसूसियात पर तबसरा होता है, 20 नंबर का होता है। बाकी सब सवाल 10-10 नंबर के होते हैं। 4 सवाल 20 नंबर के MCQs, 20 नंबर के शायरी की खुसूसियात पर तबसरा, और 20 नंबर जो हैं वो नस्र निगारी की खुसूसियात पर तबसरा। तो ये 20-20 नंबर के साथ 3 सवाल होते हैं, 60 नंबर। और 4 नंबर जो हैं 40 नंबर। 10 नंबर अशार की तशरीह, 2 अशार की तशरीह। 10 नंबर इक्तिबास की तशरीह, 10 नंबर मरकज़ी ख्याल, 10 नंबर खुलासा। तो इस तरीके से जो है 100 नंबर का पेपर होता है। अब इसमें जो है अक्सर बच्चे जो है वो मिर्ज़ा गालिब याद कर जाते हैं या मीरदर्द याद कर जाते हैं। ये तीनों को याद करना बहुत ज़रूरी है, तीनों। ऐसे ना हो आपने सिर्फ ये याद कर लिया पेपर में इनमें से आ जाए, ये याद कर लिया। वैसे तो हमने ज़्यादा नहीं दे रहे, कम से कम ये 3 याद करके जाना ज़रूरी हैं। अब इसमें लिखना क्या होता है, जैसे मिसाल के तौर पर 7-8 पेजेस लिखने जाते हैं, 20 नंबर इतनी आसानी से नहीं मिलते। इसमें उम्दा तमहीद, तारुफ, तसानीफ़, फिर खुसूसियात बहुत अच्छे अंदाज में, फिर हर खुसूसियत का एक शेर हो, फिर उसके साथ जो है इनकी वजाहत थोड़ी सी लिखनी होती है, फिर 3 नाक़िदीन की आरा लिखनी होती है। ये तमाम चीज़ें लिखनी होती हैं। इसकी हमारी तमाम वीडियो मौजूद हैं, और डिस्क्रिप्शन में भी मुझे ना आप देख लीजिएगा, उसमें भी मौजूद हैं। और अगला जो सवाल होगा वो ये होगा, इसमें भी जो है आपने सिर्फ 3 याद करने हैं, सैयद सुलेमान नदवी, मौलवी अब्दुल हक, शिबली नोमानी। बस अगर ये 3 भी याद कर लेते हैं तब भी काफ़ी है इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। इन 3 में से एक लाज़मी आएगा। अगर वक्त मिले इसको भी थोड़ा देख लीजिएगा, मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद, लेकिन उम्मीद की जा सकती है इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इन 3 में से एक लाज़मी आएगा। इसके साथ होता है अगला सवाल, इसी सवाल में या मज़मून होता है। अब मज़मून जो है उसमें हम 7-8 पेजेस नहीं लिख सकते, और इसमें हम लिख सकते हैं। इसलिए इसमें मैं तो ये कहता हूँ, राय दूंगा कि आप जो है इसमें ये तफसीरें याद करके जाएं तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ऐसी हेडिंग्स होती है, उस हेडिंग्स के साथ साथ लिखते रहेंगे तो आपके 6-7 पेजेस भर जाते हैं। नाक़िदीन की आरा लिखनी होती 3, फिर जो है 10 खुसूसियात हैं, तारुफ वगैरह है, हालात ज़िंदगी है, तसनीफ़ वगैरह हैं। कुछ बातें ज़हन में होती है, इंसान उसको देख के लिखता रहता है, तो काफ़ी हद तक जो ना इसमें लिख सकता है। लेकिन मज़मून ना लिखे जाए तो अच्छा है। मज़मून कुछ भी आ सकते हैं हालात हाज़िरा पर, लेकिन मज़मून ना ही लिखे जाए तो अच्छा है। उर्दू में थोड़ी सी मेहनत की जाए ताकि उर्दू में अच्छे नंबर आएँ। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और इंशाल्लाह भी जो है और भी बहुत सी वीडियो बनानी है। वक्तन फ़वक्तन आप दूसरों को शेयर करते रहें और अच्छे कमेंट्स करते रहें, ताकि हम जो है मज़ीद वीडियो बनाते रहें आप लोगों के लिए। सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए करते हैं, सवाब के लिए करते हैं। अल्लाह पाक जो है नए काम करने की तौफीक अता फरमाए। इसमें आप लोगों का फ़ायदा है, अच्छे नंबर आ सकते हैं। वैसे तो पूरी बुक अगर याद की जाए तो अच्छी बात है, लेकिन हम उर्दू में इतना ज़्यादा पढ़ते नहीं हैं, कम ही पढ़ रहे होते हैं, तो इतना भी पढ़ लेंगे तो इंशाल्लाह जो है अच्छे नंबरों से पास हो जाएंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफ़िज़, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैर व अहसनुल जज़ा।